Hello students, welcome to our video lecture series. In previous class, we have discussed about traditional method of drying, which is sun or solar drying. Today, we are going to discuss the solar dryer. As we know that the sun or solar drying is an traditional method of drying any agriculture commodity. Sun drying of agricultural products can be advantageous alternative to sun drying for the farmers of developing countries. It can be a means of supply solar energy as an alternative form of energy, or we can say that as an alternative of mechanical drying. It can be means of supplementing or replacing artificial dryers with consequential saving of fuels and cost. So when we are going to solve any type of problem, it must be consider the following steps when we attempting any question in examination point of view. First one is introduction. इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने अभी बताया, इंट्रोडक्शन में आप ये ला सकते हैं कि abundantly available solar energy in tropics and arid tropics of the world are the main source of energy for drying crops, vegetables, fruits and grain, etc. These products are dried by the direct application of solar energy. The customary techniques of drying involves spreading the wet material in a thin layer into the ground or floor. So, solar drying of agricultural product can be advantageous alternative to mechanical drying or sun drying for farmers of developing countries. So हमारा इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने as we teach you in previous class कि हम इंट्रोडक्शन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे. तो इंट्रोडक्शन में ओवरव्यूज आएंगे. ओके, जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये सोलर जो ड्रायर है इसका ओवरव्यूज कि सोलर ड्रायर की नीड क्यों आई, ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, इसके पहले जब ये सोलर ड्राइंग हमें नहीं पता था तो हम इसके पहले क्या किस टाइप की ड्राइंग का यूज़ कर रहे थे. तो इस टाइप की चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. इट कैन बी a means of supplementing or replacing artificial dryers with consequently saving in fuel and other form of energy, and it also saving the cost of drying. Solar drying provides higher air temperature and lower relative humidity than sun drying. सिंपल सन ड्राइंग जब हम करते हैं तो जो सोलर ड्रायर है वो हमें हाई टेम्परेचर एक तो प्रोवाइड कराता है, जो दैट इज द बेसिक नीड ऑफ ड्राइंग,
and it provide higher relative humidity, sorry, it provide lower level of relative humidity, because यदि relative humidity एयर में ज़्यादा है तो हम उस एयर का यूज़ ड्राइंग में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ड्राई करने के लिए उस एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम चाहिए. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स इट इज द kg ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर. It enhances the drying rate and lower final moisture content. It enhances the drying rate. हम sun और solar drying, by this we can enhance the drying rate. Drying rate हम बढ़ा सकते हैं. हम final moisture content है जो ग्रेन का, उसको हम कम कर सकते हैं. फाइनल मॉइस्चर कंटेंट को we obtain the moisture content of grain to its desired level. Simple sun drying is a alternative of solar drying, but it is uncontrolled drying. सोलर ड्राइंग, सन ड्राइंग अगर हम करते हैं, ये कन्वेंशनल मेथड है, पर ये हमारे अनकंट्रोल्ड होता है. ये मैकेनिकल मीन्स, इसमें हम मैकेनिकली भी ड्राई कर सकते हैं. सोलर ड्राइंग में हम मैकेनिक्स लगा दें, यदि हम इसमें ब्लोअर्स लगा दें, यदि हम इसमें मैकेनाइजेशन करते हैं इसका, तो हम इसमें कंट्रोल्ड वे में भी ड्राइंग कर सकते हैं. इट एनहेंसेस द ड्राइंग रेट एंड लोअर फाइनल मॉइस्चर कंटेंट of dried product. As a result, the risk of spoilage is reduced both during the actual drying process and in subsequent storage. By this we can do the safe storage. हम इसमें डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट लेवल तक लेके आएंगे और फिर हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं, ताकि the risk of spoilages reduces. In many cases, solar drying can be feasible alternatively, wholly or partially to artificial drying. आर्टिफिशियल जो ड्राइंग है, जिसको हम मैकेनिकल ड्राइंग कहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव हमें रिजल्ट देते हैं. ये इन सोलर ड्राइंग सिस्टम अ सोर्स ऑफ मोटिव पावर इज रिक्वायर्ड फॉर सम टाइप्स. हम इसमें मोटिव पावर लगा सकते हैं, तो हम इसमें कंट्रोल्ड वे में ड्राई कर सकते हैं. बट कंसिडरेबल सेविंग इन एनर्जी कॉस्ट इज पॉसिबल. इसमें हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं. टू बेसिक प्रिंसिपल्स आर inherent in the operation of solar dryer. एक सबसे पहला प्रिंसिपल यह है कि फर्स्टली द सोलर हीटिंग ऑफ एयर. प्रिंसिपल फर्स्ट, solar heating of air. हम एयर को सोलर एनर्जी से हीट करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो हम इसको ग्रेन के थ्रू पास करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये इस एयर की जो सेंसिबल हीट है, उस सेंसिबल हीट का यूटिलाइजेशन ग्रेन के जो मॉइस्चर है, ग्रेन का जो मॉइस्चर है, उसको इवेपोरेट करने के लिए यूज होगा. और ऑब्वियस सी बात है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हमें इसमें लो चाहिए. सेकंड, द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द वेट मटेरियल बाय द हीटेड एयर. सेकंड प्रिंसिपल क्या है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर of wet material by the heated air.
solar dryer is works on these basic principles. First one is solar heating of air, and second one is removal of moisture of wet material by heated air. So the classification is also here. So हम आगे देखते हैं सोलर हीटर का क्लासिफिकेशन. Classification of solar dryer can be made on the following criteria. First one is the degree of exposure. Classification किस पे बेस्ड है? नंबर 1 डिग्री ऑफ exposure. Degree of exposure, it is also classified into two forms. First one is direct exposure and second one is indirect exposure. यदि हम सन की एनर्जी जो है, सन एनर्जी को डायरेक्ट हम ग्रेन पे एक्सपोज करवाएं या फिर हम उसको ब्लोअर के थ्रू डायरेक्ट एक्सपोज ना करवाते हुए हम उसको क्या करें, ब्लोअर के थ्रू एक्सपोज करवाएं, तो सबसे पहला है ABC में इट इज फर्दर क्लासिफाइड बाय डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट. The mode of further classification as natural or forced convection. हम इसके बाद इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं. सेकेंड नेचुरल और फोर्स्ड कन्वेक्शन. नेचुरल और फोर्स्ड कन्वेक्शन, इसमें हम बाय मैकेनिकल मीन्स वी आर फोर्स्ड द एयर इनटू द ड्राइंग चैम्बर थ्रू ग्रेन. दैट्स व्हाई ग्रेन्स मॉइस्चर इज इवेपोरेटेड बाय दिस हॉट एयर. एंड नेचुरल कन्वेक्शन मीन्स नेचुरली जो नेचुरल स्पीड है एयर की, उससे हम मतलब कोई मैकेनिकल मीन्स हम इसमें अप्लाई नहीं करते ताकि वो फोर्सली फ्लो हो एयर. हम नेचुरल मीन्स में उसको फ्लो होने देते हैं. तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन देख रहे थे नेचुरल और फोर्स्ड कन्वेक्शन. थर्ड वन इज द टेम्परेचर ऑफ air circulated to the dryer or drying chamber. सो ये तीन टाइप के हम क्लासिफिकेशन देखें इसका. सबसे पहला है डिग्री ऑफ एक्सपोजर, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट एक्सपोजर होता है सन और सोलर एनर्जी का. हम दूसरा इसका क्लासिफिकेशन ये देखें कि नेचुरल फोर्स्ड कन्वेक्शन हो सकता है. तीसरा हमने क्लासिफिकेशन देखे कि टेम्परेचर ऑफ एयर सर्कुलेटेड टू ड्राइंग चैम्बर. हम कितना टेम्परेचर अटेंड करवाना चाहते हैं उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन द अबव क्राइटेरिया द कॉमनली यूज्ड सोलर ड्रायर
कैन बी ग्रुप्ड। सोलर ड्रायर भी अब हम टाइप देखते हैं सोलर ड्रायर कि हम उसको कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो नेचुरल कन्वेक्शन अगर हम करवाते हैं, डायरेक्ट ड्रायर विथ नेचुरल कन्वेक्शन, एंड इसमें दो पार्ट मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ड्रायर होता है और एक कलेक्टर होता है। कलेक्टर वो जो सन रेज को कलेक्ट करता है, उसको एनहेंस करता है और इसको ड्रायर को सप्लाई करता है। तो डायरेक्ट ड्रायर विथ नेचुरल कन्वेक्शन एंड विथ कंबाइंड कलेक्टर एंड ड्राइंग चैम्बर। सबसे पहला कौन सा ग्रुप है इसका? डायरेक्ट ड्रायर विथ नेचुरल कन्वेक्शन एंड विथ कंबाइंड ड्रायर, ड्राइंग चैम्बर एंड कलेक्टर। सबसे पहला तो ये हम वही देख रहे हैं कि नेचुरल कन्वेक्शन है, ये उसी जो फर्स्ट जो ग्रुप है उसका फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जो डायरेक्ट ड्रायर विथ नेचुरल कन्वेक्शन एंड विथ कंबाइंड कलेक्टर एंड ड्राइंग चैम्बर। इसमें कलेक्टर भी यहीं पे लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं कलेक्टर है, ये एयर सर्कुलेट हो रही है यहाँ से बाय वेंट होल। ये चिमनी है, ट्रांसफरेबल पैनल है, नंबर थर्ड जो है वो ट्रांसफरेबल पैनल ये है। ट्रांसफरेबल पैनल ये है चिमनी। सो एयर इनटेक, ये एयर इनटेक हो रहा है यहाँ पर, एयर इनटेक और क्लियर प्लास्टिक शीट, ये क्लियर प्लास्टिक शीट है। सो क्या होता है, डायरेक्ट ड्रायर विथ नेचुरल कन्वेक्शन एंड विथ सेपरेट कलेक्शन ऑफ कलेक्टर एंड ड्राइंग चैम्बर। ये कलेक्टर है और ये ड्राइंग चैम्बर, ये अंदर इसके यहाँ ये वायर मैश है, बैम्बू नायलॉन मैश। ये such dryers, the solar collector is made by spreading burnt rice husk on level ground. It is covered with plastic sheets. ये प्लास्टिक शीट से कवर है, ये जो है ये दिख रहा है आपको प्लास्टिक शीट, इसके अंदर बर्nt राइस हस्क हम स्प्रेड कर देते हैं। यहाँ से जब हॉट एयर, नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है यहाँ पे, हॉट एयर यहाँ से एंटर करता है, ये वेंट होल से
तो ये यहाँ पे जो कलेक्टर लगे, ये सॉरी हॉट एयर नहीं, ये एम्बिएंट एयर जब यहाँ से मूव करती है, इसके अंदर जाती है, तो ये यहाँ पे जो कलेक्टर लगा हुआ था सोलर कलेक्टर, इट इज द टू टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर विच इज प्लेट सोलर कलेक्टर एंड concentrated solar collector. So when the parallel rays of sun comes in the collector, it converges into its focal point. That principle is based on the works in this dryer. So the drying chamber is a shallow wooden base with either perforated metal or bamboo matting. The drying chamber has removable plates at the back. यहाँ से जो ड्राइंग चैम्बर है इसके बैक से वो रिमूव हो सकता है. So it is provided with a chimney, to column of warm air for increasing the draught or the flow of air. The dryer is successfully used to dry paddy in monsoon. इस पे मैं इसका लेवल नेम दे देता हूँ, डायरेक्ट ड्रायर नेचुरल कन्वेक्शन, डायरेक्ट ड्रायर विथ नेचुरल कन्वेक्शन and separate collector and drying chamber. इसके बाद इसका जो थर्ड टाइप है वो है डायरेक्ट ड्रायर विथ नेचुरल कन्वेक्शन एंड कंबाइंड कलेक्टर एंड ड्राइंग चैम्बर. अब हम डायरेक्ट ड्रायर विथ नेचुरल कन्वेक्शन एंड कंबाइंड कलेक्टर एंड ड्राइंग चैम्बर देखेंगे. तो ये बॉक्स टाइप का होता है.
वेंट होल होता है ताकि हॉट एयर इसमें से पास हो जाए। जो वेंट जो एयर है वो इसमें से यहाँ भी होल होते हैं, साइड होल। The holes are made in both the bottoms, which is natural air is flow through them, and holes at the tapered end and upper part of the dryer. It is a rectangular type और एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लैक पेंट या ब्लैक पॉलिश करते हैं, ताकि क्या होता है, ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ सोलर एनर्जी। मटेरियल so that material will be dried। ये हॉट एयर यहाँ से एंटर करती है below this compartment and then firstly they get in contact with wet grain or wet material which is to be dried। The air which is its temperature is very high and relative humidity is low। तो क्या होता है, सबसे पहले जो ग्रेन का जो मॉइस्चर होता है वो हॉट एयर इवेपोरेट कर लेती है और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और फिर यहाँ से वेंट आउट हो जाती है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ सोलर ड्रायर। इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ड्रायर। विथ नेचुरल कन्वेक्शन एंड कंबाइंड कलेक्टर and drying chamber। इसमें कलेक्टर और ड्राइंग चैम्बर दोनों कंबाइंड होते हैं। अब हम बात करते हैं कलेक्टर की। In the solar dryer, the natural convection takes place। Greens or any agriculture commodity is to be dried by convection process। कलेक्टर थर्ड हमारा जो है कलेक्टर, और हम इसको वी कैन से सोलर कलेक्टर। इट इज फ्लेट एंड सेकंड कॉन्सेंट्रिक। दो टाइप के कलेक्टर हो सकते हैं, एक तो फ्लेट प्लेट कलेक्टर हो सकता है और कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर हो सकता है। कॉन्सेंट्रिक कलेक्टर में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज अ कॉन्केव टाइप एंड व्हेन द सन रेज falls in it which is parallel to each other, they collect into its focal point। They collect into a one point that is called its focus point। And flat plate collector, it is the
3 types. Number 1 बेयर्ड. नंबर 1 क्या? बेयर्ड प्लेट. बेयर्ड प्लेट. नंबर सेकंड क्या हो सकता है? कवर्ड प्लेट. कवर्ड प्लेट. नंबर थर्ड क्या हो सकता है? कवर्ड सस्पेंडेड प्लेट. कवर्ड बेयर्ड प्लेट की बात करें तो यहाँ पे ये दिस टाइप से ये इंसुलेटिंग मटेरियल एंड ये स्टील मेटल एब्जॉर्बर. इट इज स्टील मेटल एब्जॉर्बर. ये यहां से फ्लो कर. सेकेंड टाइप का जो है वो कवर्ड प्लेट. इसमें इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का कवरिंग होता है. ट्रांसपेरेंट कवर होता है इसमें. सेम चीज इसमें सबसे पहले स्टील मेटल एब्जॉर्बर होता है. ओके. इंसुलेटिंग प्लेट लगी हुई होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की. स्टील मेटल एब्जॉर्बर होता है. सोलर रेडिएशन यहाँ से ऐसे सोलर रेडिएशन आती है. और ट्रांसपेरेंट एक कवर लगा हुआ होता है. इसी टाइप का ये थर्ड वन भी होता है. इसमें और इसमें फर्क ये होता है कि सस्पेंडेड स्टेट में होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.